Very good morning, student. Today we are going to learn centralization and decentralization. Uh, for many of you, it's a very new term, centralization, decentralization. And in business organization, it is very important. Every organization decentralize their work or depend on their nature of organization also. If organization is big, so they must be decentralized in their systematic authority. If organization is small, then they can go for the centralization of authority. Okay, so first, centralization refers to concentration of authority at top level. An organization is centralized when the decision making authority is in the hands of top level management only. It means जो निर्णय लेने वाले लोग हैं सिर्फ उन्हीं के पास में अथॉरिटीज़ होती है, जैसे कि सेंट्रलाइजेशन में सिर्फ टॉप लेवल ही अकेला रिलेटेड टू ऑर्गेनाइजेशन, रिलेटेड टू ऑब्जेक्टिव, जो भी डिसीजंस हो वो केवल कौन लेगा? टॉप लेवल लेगा। वहीं उसका अपोजिट डिसेंट्रलाइजेशन, अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी बड़ी है तो देयर इज़ ए नीड ऑफ डिसेंट्रलाइज द अथॉरिटी। आपकी ऑर्गेनाइजेशन बड़ी है तो सारे डिसीजन आप अकेले नहीं ले सकते, और अगर आप सोचेंगे कि आप सारे डिसीजन खुद अकेले लें तो इट इज़ टाइम टेकिंग प्रोसेस। ओके, तो इसलिए फॉर द बिग ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू क्या किया जाता है? डिसेंट्रलाइजेशन रिफर्स टू systematic delegation of authority throughout all the levels of management in all departments. सारे डिपार्टमेंट्स को भी डेलीगेट किया जाता है यहाँ पे अथॉरिटीज़ को। देखिए आप ये डायग्राम में अगर आपको दिखेगा तो इसमें आप इस डायग्राम में देख रहे हैं सेंट्रलाइज में एक ही डिसीजन लेने वाले एक ही व्यक्ति है। ओके, है ना, मतलब टॉप लेवल पर है। और डिसेंट्रलाइजेशन वाले में आप देखोगे वहाँ पर हर जगह लीडर है, ठीक है, and they all are leader connected with the top level people. Now look at this diagram. In this there is decentralization, you will see top level, and these are departmental head. Okay, departmental heads also having some authorities. Okay, it means they are responsible for they are also responsible for the work, they are responsible also for the authorities. And definitely if authority is delegated, your work will be on time, your work will be finished soon. But in case centralization, you will see here only one person, only top level have centralized all authorities with them. इट मीन्स कुछ भी काम होगा, कुछ भी करना हो, हमें किसके पास जाना होगा? टॉप लेवल के पास जाना होगा। डिसीजन कौन लेगा? टॉप लेवल में लेगा। पॉलिसी फ्रेम कौन करेगा? टॉप लेवल फ्रेम करेगा। उसकी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग कौन करेगा? टॉप लेवल फ्रेम करेगा, ठीक है। लेकिन ये दोनों ही चीज़ें जो है अपने आप में बहुत डिफरेंट है। सेंट्रलाइजेशन अगर होगा तो ये इट इज़ सूटेबल फॉर स्मॉल फार्म ओनली, and decentralization is not suitable for a small farm, for big farm only. Okay, it has to be suitable. Got it? So now let us come to the decentralization. Decentralization is very important topic for your exam point of view also. Okay, and it is look like a delegation also. Okay, it's look like a delegation. हमने जो delegation में पढ़ा उसके जैसा ही यह टॉपिक है। Wait. Now let us start decentralization. Decentralized refers to a systematic delegation of authority throughout all the levels of management and in all the departments. An organization is said to be centralized when managers at middle and lower levels are given the authority to take decisions and actions on matters relating their respective areas of work. Top management retains only the authority for taking major decisions and also retain the authority for overall coordination control of the organization. So simple student, decentralization implementer, it has a nature of whole, it is for whole organization, it is not individualistic nature, it is in totalistic nature.
ओके। जैसे डेलीगेशन इंडिविजुअलिस्टिक नेचर के लिए होता है, डेलीगेशन जो होता है वो फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन के लिए होता है, बट डिसेंट्रलाइजेशन ऐसा नहीं होता है। डिसेंट्रलाइजेशन में टॉप मैनेजमेंट क्या करता है, मिडिल लेवल लोअर लेवल दोनों लेवल्स पे क्या करता है, अथॉरिटीज़ वगैरह को डेलीगेट करता है, ठीक है। दोनों ही लेवल पर, ऐसा नहीं किसी एक लेवल पर, दोनों लेवल पर इन चीज़ों को डेलीगेट किया जाता है। सबसे बड़ा एडवांटेज अगर अथॉरिटीज़ डेलीगेट होती है तो सबसे बड़ा है क्विकली डिसीजन मेकिंग, सबसे बड़ा एडवांटेज, क्योंकि हर काम के लिए लोअर लेवल और मिडिल लेवल टॉप लेवल के पास नहीं जाएगा। दे कैन टेक देयर ओन डिसीजंस फॉर देयर रिलेटेड वर्क एरियाज, गॉट इट। सो इससे क्या होता है, एक बेटर का इट प्रमोट्स बेटर कंट्रोल, इट प्रमोट्स फैसिलिटेशन ऑफ ग्रोथ, it promotes effective communication, and one more most important is it gives relief to the top management. टॉप मैनेजमेंट को बहुत रिलीव मिलता है, एंड दे गिव देयर प्रायोरिटीज टू द हाई डिमांडेड वर्क, और द वर्क विच इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर देम, they only retain those work with them, okay, and other works which are not require high priorities, they delegate those work to the middle level and the lower level, okay. Now there are some importance are also given here, importance of decentralization. So importance of decentralization, it helps or it develop initiative among subordinates. सिंपल है, अगर आप टॉप लेवल पर हो और आप चीज़ों को डिसेंट्रलाइज करोगे तो क्या होगा, आपने अपने मिडिल लेवल को आपने डिसेंट्रलाइज करा, आपने लोअर लेवल को डिसेंट्रलाइज करा, तो उसका एडवांटेज आपको क्या देखना पड़ेगा, इट हेल्प्स और इट हेल्प्स इन डेवलपिंग इनिशिएटिव अमंग सबऑर्डिनेट्स। कहीं ना कहीं वो लोग मोटिवेट होंगे, उनका जो कॉन्फिडेंस होगा वो बूस्टअप होगा, ओके, वो सेल्फ रिलायंस बनेंगे, ठीक है। सो इट इज़ ऑल सच थिंग फॉर द बेटरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। कहीं ना कहीं ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या है, बहुत फ़ायदे की चीज़ है कि, और कहीं ना कहीं ऐसी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए ही ये लोग तैयार होते हैं, और इससे हम फ्यूचर टैलेंट तैयार कर सकते हैं। सबसे बड़ा एडवांटेज, वी कैन मेक फ्यूचर, और we can prepare future talent or future manager for the organization. सेकेंड इम्पोर्टेंस, क्विक डिसीजन मेकिंग। अगर सेंट्रलाइजेशन होता तो लोअर लेवल भी हो, मिडिल लेवल भी हो, उन्हें हर काम के लिए किसके पास जाना पड़ता, टॉप लेवल के पास। क्यों जाना पड़ता, बिकॉज ओनली टॉप लेवल हैज़ द अथॉरिटी टू टेक द डिसीजन फॉर एनी एक्शन। बिफोर एनी एक्शन किसको अथॉरिटीज है कि डिसीजन लेने की, टॉप लेवल की। अब जब टॉप लेवल के पास होगी तो फिर लोअर लेवल पहले मिडिल के पास आएगा, मिडिल फिर टॉप के पास जाएगा, और समटाइम टॉप मैनेजमेंट इज बिजी बिकॉज दे आर हैविंग लॉट ऑफ वर्क, ठीक है। उनके पास में प्रोडक्शन एक्टिविटी या कोई अदर एक्टिविटीज़ के अलावा और भी बहुत सारे काम होते हैं, तो ड्यू टू दैट रीज़न it takes lot of time. But in case of decentralization, if work is delegated, if work is decentralized among their departments, like middle level departments as well as lower level, तो लोअर लेवल के पास में जो उसका काम है वो उससे रिलेटेड, उसके वर्क एरिया से रिलेटेड जो भी डिसीजन लेना होता है उसको वो आज़ादी दी गई होती है, कि उसको अथॉरिटी दी गई होती है कि वो उन डिसीजंस को ले सके। ऐसे ही मिडिल लेवल में उन लोग के पास में जो अथॉरिटीज़ है, अकॉर्डिंग टू दैट दे विल टेक डिसीजंस। तो इन्हें हर चीज़ के लिए किसके पास नहीं जाना है, अगर डिसेंट्रलाइजेशन है तो टॉप लेवल के पास, ओके। सो दे कैन अप्रूव देमसेल्फ और दे कैन टेक फास्टर डिसीजंस ऑन देयर ओन। रिलीफ टू टॉप मैनेजमेंट, ये मैंने पहले बताया कैसे रिलीफ मिल रहा है। देखिए जो टॉप लेवल होता है उनके पास दे आर हैविंग लॉट ऑफ वर्क, दे आर हैविंग बर्डन ऑफ वर्क। अगर उन बर्डन ऑफ वर्क का लेके आप काम करेंगे तो डेफिनेटली आपकी इफिशियंसी क्या हो जाएगी, गिर जाएगी, आपकी इफेक्टिवनेस लो हो जाएगी, एंड ड्यू टू दैट ओनली, ओके, समटाइम यू कैन टेक रॉन्ग डिसीजंस, क्योंकि आप बहुत बिजी है। जब भी आप ज़्यादा बिजी, ज़रूरत से ज़्यादा बिजी होंगे तो आप गलत करेंगे, और गलत करने का परिणाम ये होगा आपकी ऑर्गेनाइजेशन अफेक्ट होगी, आपके ऑर्गेनाइजेशन की गोल अफेक्ट होगा, आपके ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ जो भी हो, प्रॉफिट वगैरह जो भी, वो सब अफेक्ट होंगे। सो क्या करना चाहिए, एक ऑर्गेनाइजेशन को जब बर्डन ऑफ वर्क होता है टॉप लेवल मैनेजर के पास में एक्सेसिव वर्कलोड होता है, तो उन्हें क्या करना चाहिए, हाई प्रायोरिटीज़ वर्क को या फिर जो मेजर डिसीजन रिलेटेड वर्क हो उन्हें अपने पास में रिटेन करें,
बाकी सारे काम को क्या करना चाहिए, इफ वर्क इज रिलेटेड, इफ डिसीजंस आर रिलेटेड टू मिडिल लेवल ओनली, दे डेलीगेट द वर्क टू द मिडिल लेवल एंड गिव्स अथॉरिटीज टू द मिडिल लेवल, एंड ऑल्सो टेल them tell them also, if you are having authority, if you want to delegate to the lower level, then you can delegate to the lower level also. So okay, और अब जब इनके पास में काम नहीं बचेगा, ठीक है, तो इट डज नॉट मीन दे आर फ्री, दे बिकम फ्री। ये लोग फ्री नहीं हुए हैं, इन लोग के पास में अब भी बहुत सारा काम है, और वो लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखो लास्ट लाइन में क्या लिखा हुआ है, दिस हेल्प्स द टॉप मैनेजमेंट टू यूटिलाइज देयर वैल्यूएबल टाइम ऑन इम्पॉर्टेंट मैटर्स। मतलब आप उनके पास में जो समय बचा, उस समय का उपयोग वो जो इम्पोर्टेंट मैटर्स फॉर द ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, फॉर दैट वर्क दे विल यूज दैट टाइम। इट फैसिलिटेट्स ग्रोथ। डेफिनेटली आप जब डिसेंट्रलाइज करोगे तो ग्रोथ इंक्रीज होगा। इट इनेबल्स द मैनेजर एट लोअर लेवल्स एज वेल एज द डिपार्टमेंटल हैज टू परफॉर्म देयर फुल पोटेंशियल एंड सेंस ऑफ हेल्दी कॉम्पिटिशन अमंग द डिपार्टमेंट्स। इट विल कॉन्ट्रीब्यूट अ लॉट टू द डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। डेमोक्रेटिक सिस्टम है, आपने सबको अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर किया, आपने अकेले अपने पास अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रखी एज ए टॉप लेवल, मिडिल लेवल पर भी अथॉरिटीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, लोअर लेवल पर भी है। सो व्हाट अप्रोच इज यूजिंग हियर मैनेजमेंट, डेमोक्रेटिक अप्रोच टुवर्ड्स द मैनेजमेंट। ओके, बेटर कंट्रोल लीड्स टू बेटर कंट्रोल बाय इवेल्युएटिंग परफॉर्मेंस ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट। आप सारे डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करके आप जो है बेटर कंट्रोल आप ऑर्गेनाइजेशन में रख सकते हो। सो वी लर्न सम इम्पोर्टेंस हियर, पॉइंट आर गिवन हियर। रिडक्शन ऑफ वर्कलोड, जो बर्डन ऑफ वर्क कम होता है। डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल, हम फ्यूचर टैलेंट तैयार करते हैं, फ्यूचर मैनेजर तैयार करते हैं विद द मोटिवेशन फॉर सबॉर्डिनेट्स। एम्प्लॉयज़ को अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है, दे विल टेक डेफिनेटली इनिशिएटिव, दे इनहांस देयर कॉन्फिडेंस, दे बूस्ट देयर मोरल ऑल्सो। क्विक डिसीजन मेकिंग, हमें बार बार इधर उधर नहीं जाना है, दे कैन टेक देयर ओन डिसीजंस। ओके, दे आर नॉट वेटिंग फॉर द टॉप, दे आर नॉट वेटिंग फॉर द इंटरफेरेंस ऑफ टॉप लेवल। ओके, दे कैन टेक देयर वर्क एरियाज रिलेटेड ओन डिसीजंस। Initiative and creativity, better coordination also is there, then better control is also there. Okay, so there are some difference between is also given. So there meaning on the basis of some basis are given here, but before explaining this, student एक चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखना है कि मोस्टली डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन से रिलेटेड एग्ज़ाम में केस स्टडी आता है। अब उस केस स्टडी में क्या होता है, जब बच्चा केस को रीड करता है, ठीक है, ये मेरा एक्सपीरियंस है जो मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ, मैंने कई बार स्टूडेंट्स को देखा है ना, वाइल इवेल्यूशन ऑफ कॉपीज़ ऑल्सो, बोर्ड एग्ज़ाम की कॉपीज़ वगैरह चेक करते हुए मैंने पाया है कि जब बच्चा केस पढ़ता है ना, तो उसका आंसर या तो डेलीगेशन होता है, डिसेंट्रलाइजेशन होता है, दोनों में से एक होता है। कई बार ऐसा होता है। तो कई बच्चों को क्या होता है, जब केस पढ़ते हैं वाइल रीडिंग केस, उन्हें आंसर डेलीगेशन लगता है, जबकि उसका एग्जैक्ट आंसर क्या होता है, डिसेंट्रलाइजेशन। कई बार आंसर डिसेंट्रलाइजेशन होता है, लेकिन बच्चे को क्या लगता है कि उसका आंसर क्या है, डेलीगेशन। ठीक है, तो बच्चा बहुत कंफ्यूज होता है जब भी केस किससे रिलेटेड हो, डेलीगेशन या डिसेंट्रलाइजेशन से रिलेटेड एग्जाम में आ जाए। उसके पीछे क्या होता है, और रीज़न ये है, बच्चे के दिमाग में बस ये है कि डेलीगेशन मतलब क्या है, अथॉरिटीज़ को क्या करना, डेलीगेट करना। डिसेंट्रलाइजेशन मतलब भी एक तरह से ये लग रहा है कि अपन ने अथॉरिटी कहाँ पे डेलीगेट करी, अपन ने अथॉरिटी कहाँ पे डेलीगेट करी, मिडिल लेवल को करी या फिर लोअर लेवल को। दोनों में डिफरेंस क्या है, देखिए मीनिंग में यहाँ पे लिखा, इट इज डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। अपन ने अथॉरिटी क्या करी, एक मैनेजर ने अथॉरिटी क्या करी, उसके जो भी उसका सबऑर्डिनेट है उसको अथॉरिटी दे दी, ठीक है, तो इट इज़ फॉर वन पर्सन टू अनदर। बट इन केस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन it is whole in the organization. It does not mean it is just for one person to another. It is for middle level as well as it is for lower level, from top level to middle to lower. Now nature of delegation is, it is one person to another, that's why it is individualistic nature. And decentralization, it is for whole in the organization, that's why it is totalistic nature. Scope of delegation is very limited and scope of decentralization is wide scope. Responsibility
इट रिमेन्स विद द सुपीरियर। यहाँ पे 1% टू अनदर है, तो जो सुपीरियर है जिसने अथॉरिटी डेलीगेट करी है, हु इज द दैट इज द पर्सन, और पर्सन सुपीरियर इज द पर्सन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिलेटेड वर्क, एंड हियर डिसेंडेंट रिलीव्ड अप टू अ सर्टेन एक्सटेंट। ठीक है, यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या कर दी जाती है, रिलीव्ड की जाती है कुछ निश्चित पैरामीटर्स पर। ओके, इफेक्टिवनेस here, effective in all organization, more effective in large organization, relationship, superior subordinate relationship, autonomous units in the organization. Got it? So student, our topic is finished. Chapter number 5, organizing. I hope you all are understand. So many topic we had learned in this chapter, and it is very important chapter according to the examination point of view. Okay, so in that chapter first we learned meaning of organizing, then after that importance we have learned, then features also we have learned, process of organizing also we have learned. Okay, so many slides are there. See, organizing we have learned here, then organizing structure, then process of organizing we have learned. Four processes are there. Then importance of organizing. After importance, स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें दो स्ट्रक्चर थे, डिविजनल एंड फंक्शनल। आफ्टर स्ट्रक्चर, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन वी हैव लर्न्ड। आफ्टर फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन वी हैव लर्न्ड और डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। इसमें भी हमने 3 एलिमेंट पढ़े थे, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। देन आफ्टर दैट importance of delegation, then last topic which we have learned, centralization, decentralization, and at the end of the topic we had learned distinguish between delegation and decentralization. So got it, student? So write down or make a notes, prepare notes into your notebook according to this video. Also you can make notes, or I already send you this PPT in PDF format to all of you, so you can use that PDF format also for making notes. Or today or tomorrow I will send you NCERT solution also. Okay, NCERT question answer solution also. So by that solution you can easily prepare notes into your notebook. Got it? So thank you so much. Have a nice day.